आगे कैसे ले जाया जाए, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं। क्या हुआ उन वादों का? 14 महीने तक बिहार नहीं याद आया, बिहार की याद नहीं सताई। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला। With electioneering picking up, both rival parties, that is the Grand Alliance and the BJP-led NDA, have intensified their efforts to lure the voters. The electoral wars have already taken over the hoardings, where both parties have plastered the walls across the city and across the state through their posters. If you look at the posters, you would really feel that the leaders and the parties are talking through the posters. Now I would like to show you the BJP poster, for example. It talks about महिलाओं की सुरक्षा के लिए बदलिए सरकार, बदलिए बिहार. The underlining message talks about the development of Bihar and the women's security. Another poster which talks about बिहार के विकास के लिए बदलिए सरकार, बदलिए बिहार. So again, the underlining message is development. But now if I take you further and show you one of the posters of the Grand Alliance, majorly Nitish Kumar's posters, it talks about बहुत हुआ जुमलों का वार, फिर एक बार Nitish Kumar. So basically, Nitish Kumar is targeting the BJP-led NDA on its one-liners, the way Prime Minister Modi has been luring the voters through his one-liners. So it's a direct target on his one-liners. I'll show you a few more posters. Now let me take you across to one of the RJD posters, what it talks about. It says a very important thing. Lalu dominates with a small picture of Rabdi Devi. It says, गरीबों की आवाज़ है लालू, हम सबकी परवाज़ है लालू. So basically, Lalu Yadav has become a champion of the pichhadas, the underprivileged. So that is how he is championing his cause. But one thing that needs to be seen is, in all these posters, whether it is a BJP poster or it is the Grand Alliance poster, in the BJP poster you see it's majorly dominated by Narendra Modi and Amit Shah. The allies are missing. So what do the allies do? For that, you have a separate poster, for example, of a party like Lok Jan Shakti Party. Now, Lok Jan Shakti Party shows Chirag Paswan and Ram Vilas Paswan. And it's a small hoarding which is, of course, not too dominating, but it is there. It is there at every half a kilometer of the city. You would find the Paswan posters, the Chirag Paswan and the Ram Vilas Paswan. Now, I would like to show you another poster of Nitish Kumar which talks about this message. झांसे में ना आएंगे, नीतीश को जिताएंगे. So basically, Nitish Kumar is telling his voters that Prime Minister Narendra Modi has been making fake promises. They have been unfulfilled promises. So the voters should not get lured by what he says in the rally. But let me tell you, in the initial phase, the posters of Grand Alliance which were launched only had Nitish Kumar. It was only Nitish all across. But yes, there was some resentment by the allies, and then suddenly you see a change. And there you see a poster which has pictures, of course, Nitish again is dominating, but then that poster you would see has Lalu Yadav, Rabdi Devi, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. And of course, the message is there, but it is a poster which has Nitish Kumar along with his allies. There is a general feeling that people here in Bihar have never seen such big hoardings. Let's find out from the people. आपने कभी इतने बड़े पोस्टर पहले कभी देखे? नहीं. Okay, let me ask some more people. बताइए, नीतीश कुमार और लालू जी के इतने बड़े-बड़े पोस्टर आपने पहले कभी बिहार में देखा है? कभी नहीं देखे हैं. आपने देखा है? आपने देखा है? आपको लग रहा है क्या कि ये लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, अमिताभ बच्चन और सारे फिल्म सितारों को भी पीछे कर दिया है? नहीं जी, कभी पीछे नहीं करेंगे. पीछे नहीं करेंगे. आपको लग रहा है कि पीछे किया है? नहीं, पीछे लगा है, नयापन लगा है. मतलब नयापन आपको लग रहा है इसमें? आपको कुछ कहना है? जो इतने बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं सब राजनीतिक पार्टियों ने, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है वोटर किस हिसाब से वोट डालेगा? विकास हो, कोई काम हो, नेता लोग करेगा तब ना.
ऐसे थोड़ी डालेगा लोग, अच्छा, जिस पर संतुष्ट हो। Santushti ho. Okay. So the voters here talk about the fact few of them realize that ultimately it is their work, it is the development which they do. The poster war is going to get murkier because BJP has released its vision document and they will obviously put the highlights of the vision document in the form of posters. But can the poster war really translate into votes? That is the biggest question. We are at the historic Gandhi Maidan, which people say decides the political mood of the state. There are a few people here with me. Let's find out from them what exactly the political mood is, what the Janta of Bihar really wants. आपका नाम क्या है सर? रवि कुमार। रवि कुमार, आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन ना। आप बिजनेसमैन हो। अच्छा, अब ये बताइए कि इतने बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स सारी पार्टियों ने लगाया है, ठीक है, आपका क्या मानना है कि जो पोस्टर्स में लिखा है और जिस तरीके की एक जो पॉलिटिकल बैटल देखने में आ रही है, आप किस बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को वोट दोगे? विकास के दम पर या कास्ट के दम पर? कैसे, किस बेसिस पे आप वोट डालोगे? हम तो विकास के मुद्दे पे ही वोट देंगे। अच्छा, विकास के मुद्दे पे ही वोट देंगे। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और शायद अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कुछ ना हो पाए, ऐसा है? क्योंकि 25 साल तक लोगों ने देखा है ये लालू यादव के शासन को और नीतीश कुमार के शासन को। अब लोग परिवर्तन के मूड में हैं। लोग चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग। तो आपके लिए परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन का मतलब है कि युवा को रोजगार मिले। अच्छा, युवा को रोजगार मिले, कानून व्यवस्था सुधरे। लेकिन ये बताइए कि दोनों पार्टीज, जो ग्रैंड अलायंस, जो महागठबंधन है और जो बीजेपी का एनडीए है, दोनों पार्टीज विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या चॉइस मुश्किल हो गई है इस समय? नहीं, चॉइस मुश्किल नहीं हो चुकी। अच्छा, किसी और से पूछते हैं, आपके लिए क्या चॉइस मुश्किल है इस बार चुनाव में? नीतीश वर्सेस मोदी? बीजेपी का ही सरकार आएगा मैडम। नीतीश जी भी काम किए, जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक काम अच्छा हुआ। बीजेपी के जो मंत्री थे वो लोग काम किए। हाँ। जब ये अलग हो गए तब से इनका स्थिति ठीक नहीं, और जात पर अभी कास्टेज में कर रहे हैं, ये सब गलत है। तो बिहार की जनता किसके लिए वोट करेगी? बीजेपी के लिए वोट करेगी। क्यों? नरेंद्र मोदी की वजह से या बीजेपी का विकास के मुद्दे की वजह से? विकास के मुद्दे की वजह से। आप तो एक युवा वर्ग हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या कहना चाह रहे हो उस समय पॉलिटिकल पार्टी से? हम लोग हमारे छात्र हित में जो भी पार्टी काम करे, अभी तो देखा जा रहा है परिवर्तन पूरे बिहार चाह रही है। हमारे कहने का मतलब कि नीतीश जी, जो भी अगर लोग कहते हैं कि भाजपा का सबसे अच्छा गठबंधन का सरकार था, हाँ। तो बहुत अच्छा काम हुआ। हट जाने के बाद में नहीं हुआ विकास। हाँ। विकास ये जरूरी नहीं है, जो भी विकास हुआ नीतीश जी के ही लेकर हुआ, और नीतीश जी के ही नेतृत्व में सब कुछ आगे बढ़ावा हुआ। जो भी हम विकास देख रहे हैं नीतीश जी के देख रहे हैं, या लालू जी को देखकर नहीं, हम नीतीश जी को देख रहे हैं कि बिहार में सबसे अच्छा। लेकिन ये बताइए, नीतीश जी ने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की लालू यादव से हाथ मिलाकर? तो दूसरा, जब ऐसा कुछ गलती नहीं है, गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं है कि जब वो गठबंधन तोड़ सकते हैं तो किसी न किसी पार्टी से तो जुड़ना ही पड़ेगा। जनता ये मंडल का बात से उब चुकी है। लालू यादव का बात नहीं है। नीतीश जी पहले भी काम किए हुए, अभी भी काम किए हैं और करते रहेंगे। ऐसा कुछ। लेकिन ये बताइए, क्या कहना है नेताओं से? जरा कैमरे पे बोल दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं इस समय नेताओं को? हम तो कह रहे हैं कि एकदम गठबंधन का ही सरकार आएगा। गठबंधन का सरकार आएगा। यही काम किए हुए हैं। आप क्या बोलना चाहते हो सरकार से? सरकार चाह रही है। हाँ जी, परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाह रही है। चलिए, so it's a wind of change. That's what the people here want. Amidst this high decibel campaign, the reality is
that it's a do-or-die battle for Lalu Yadav and Nitish Kumar, but the stakes are equally high for the BJP as it's a litmus test for the Narendra Modi and Amit Shah duo, especially after the Delhi debacle. If the BJP wins, it could give a fillip or a momentum for the forthcoming assembly elections, but if the party loses, people will definitely question the Modi way. But the big question right now is that are all the political parties in Bihar really talking about the real issues, the issues of the people? Let's talk to the common man here on the Bihar street. महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी क्या है बिहार में? महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, हाँ, और आरक्षण चाहिए। आप किस इलाके में रहती हैं? आपको लगता है कि साफ सफाई है आपके एरिया में? पाटलिपुत्रा में रखते हैं। अच्छा, तो आपके एरिया में क्या हाल है? हम लोग का है कि हम लोग को साफ सफाई चाहिए, नगर निगम उतना साफ सफाई नहीं करता है। हाँ, नहीं है। लेकिन नेता लोग इसकी बात कर रहे हैं, वो तो जात पात के बातों में लगे हुए हैं। वो लोग तो अपना जात है तो अपना ही जात का करेगा। आपको क्या कहना है? नेता क्या जो ये चुनाव है उसमें क्या नेता रियल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं लोगों के? नहीं, यहाँ पर जो अभी रोड अभी नहीं बना हुआ है, यहाँ पोस्ट ऑफिस रोड एकदम गंदा है। समय यहाँ रोड नीतीश कुमार अभी बैठे, मांझी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं बना। रोड नहीं बना। यहाँ का सबसे बड़ा मूल समस्या है जैसे कि देखिए यहाँ पर जो पानी बह रहा है नाला, और साफ सफाइया का जो मामला है, ये हाट बाजार है, हाट बाजार को भी बंदोबस्ती करना चाहिए। और कोई भी सरकार आए पब्लिक सुरक्षा चाहती है, मेन मूल समस्या ये है। लेकिन आपको लग रहा है कि चुनाव में वो बातें हो रही हैं जो लोगों को चाहिए? नहीं हो रही है। चुनाव में सभी नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। The Bihar society is such that the older generation of women have been demure because they have been illiterate. They don't have informed choices. So let us talk to a few women of this generation and then we'll take you to the younger generation. अब ये बताइए कि ये पूरा चुनाव आपको ठीक लग रहा है? नेता ठीक बातें कर रहे हैं चुनाव में? नेता इधर कहाँ कोई आएगी? नेता इधर नहीं आता है ना। आपकी कोई समस्याओं को सुलझाने नेता आज तक आया है? ना, समस्या खाली वोट ले खातिर आवेदन ले लिया ना, ओकरा बाद उनको समस्या खत्म। अच्छा, वोट लेने आया और चले गए। अच्छा, वोट मिल गए ओकरा बाद नाली बता कि का होता का ना, वो खातिर ना। चलिए, the youth of Bihar, especially the girls, their aspirations have become wider and they are more vocal about their choices. आप बताइए कि जो यंग बिहारी लड़की है, चुनाव के हिसाब से आपको इस समय क्या दिक्कतें हैं और क्या सरकार इसके बारे में, जो पार्टीज़ हैं वो क्या बात उन इश्यूज़ के बारे में बात कर रही हैं? देखिए, दिक्कतें तो ऐसे देखा जाए तो बहुत है, बट हम लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा ये चाहिए, हमारे अंदर से सेफ्टी होनी चाहिए। हम जो दिन में या रात में एक लड़कियों का होता है, एक टाइम टेबल बना के निकलते हैं, उसमें नहीं होना चाहिए। तो सरकार वैसे उस तरह की सुविधा प्रदान करे, हम लोग को दे, ताकि हम लोग कहीं भी निकल सके, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल एंजॉय कर सके, बिना किसी डर के साथ बिल्कुल रिलैक्स होके। तो आई थिंक लड़कियों के लिए सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना ही चाहिए। आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? सेफ्टी और गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए सेफ्टी। हाँ। सेफ्टी इज़ अ वेरी बिग इशू, जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं। Bihar elections is doing an encore of the epic battle of Mahabharat, where playground Kurukshetra has been laid out, except that the protagonists here are Grand Alliance and BJP-led NDA. Many say that the daggers of swords are out, but let me tell you, that is what is making this election interesting day by day. I'll have to take a break here. We return with lots more on Bihar Nama when we come back. Get live Rajya Sabha session, news, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television.
has become more relevant to India to use this technology, microbial leaching of metals from ores, because we have already depleted our rich mineral reserves. I realized that actually many microbes produce nanoparticles, but only we didn't know that they should be called as nanoparticles. And that's how we actually developed a technology, which is again a microbial technology for extracting arsenic from water. Watch Eureka with Dr. Patnikar, Director, Agharkar Research Institute on Rajya Sabha Television. Hottest topics. If you can facilitate the opening up and the expansion of the international border trade, you can add to the economy. 370 धारा जो है वो जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़े रखती है. Candid confessions. The Congress has not been able to communicate. We have to revive our links with the masses. World-class healthcare is available to only a handful of people in this country. Causing controversies. A lot of leaders today think that they rule by divine right. Now, media has become manageable. Watch RSTV engage personalities to the point. Every Wednesday, 10 p.m. Thursday, 1:30 and 5:30 p.m. Litti chokha and sattu are the local flavor of Bihar. I am at this stall which actually rose to prominence because of Aamir Khan's promotion of his film PK. It was at this stall where Aamir Khan actually came and relished the hot litti and chokha. He's the owner of the stall, I believe. What's your name? Chandan. Chandan. How old is your shop really? I think my grandfather owns this from 1975. And you are also doing the same thing? You are also making littis now? Now I am in this. You are also in this field. यहाँ पे बहुत सारे नेता आते हैं खाने लिट्टी चोखा. जो भी आते हैं क्योंकि बेली रोड यहाँ का मेन रोड है. हाँ. तो जितने भी नेता विधायक आते हैं उनका इधर से इस रोड से. कौन सा नेता कितनी लिट्टी खाता है पहले ये बताइए. रामकृपाल यादव जो है अभी जो बीजेपी में पहले तो आरजेडी में थे, तो ये इनका बहुत ही फेमस है. किस नेता को बहुत पसंद है? यादव तो उनसे वो हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे. लालू यादव को लिट्टी बहुत पसंद है. मैक्सिमम कितनी लिट्टी एक नेता खा सकता है? जैसे आपने रामकृपाल और लालू जी की बात की, कितनी लिट्टी खा सकते हो? मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन मिनिमम 4 वो खाते हैं. मिनिमम 4 खाते हैं. चलिए, अगर लालू जी ये प्रोग्राम देखेंगे तो उनको बहुत हंसी आएगी. किसी भी नेता ने इस चुनाव में लिट्टी और चोखा के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया? कभी नहीं, ऐसा कभी मेंशन नहीं किया. लेकिन क्यों? गुजरात के जो है वो बाकी स्टेट के अपना जो होता है वो उसे प्रमोट करते हैं, लेकिन बिहार के जो भी नेता हैं वो इसे प्रमोट नहीं करते. ओ बाबा, ये तो बहुत बड़ी शिकायत है चंदन ने की है सारे नेताओं से. द लीडर्स हैव टू लिसन टू हिम. दे आर सेइंग दैट इफ मोदी जी कैन प्रमोट हिज ढोकला, then why do the Bihari leaders not promote litti and chokha? I'm sure the leaders would see this program and see you and I have this hear. Okay. लिट्टी और नेताओं का क्या कनेक्शन है? हमेशा जाता है 150-200 लिट्टी. कहाँ? किस नेता के घर पे भिजवाते हो आप? नीतीश कुमार मेरा. नीतीश कुमार के घर पे कितनी लिट्टी जाती है? 150-200. कार्टून में जाता है भर 150-200 लिट्टी नीतीश कुमार जी के घर में जाता है. आप ही की दुकान से? आप ही की दुकान से? हाँ, बिहारी लिट्टी का दुकान यही है. अच्छा, ये बताइए तो नीतीश कुमार जी ने आपको क्या कंसेशन दिया है? हमारा कहाँ कुछ होती है. आपके लिए कुछ नहीं किया है? हाँ. अच्छा, ये बताइए नेताओं से आपको क्या बोलना है लिट्टी बनाते बनाते? जरा यहाँ की भाषा में बोल के दिखाइए. गुजरात के ढोकला बहुत खा लिए, आप लिट्टी चोखा बिहार के खाइए. चलिए खा के देखिए. चलिए, मैं जरूर खा के देखूंगी और बताऊंगी कैसा है लिट्टी चोखा. So now I want to know from you that are the political parties talking about the real issues in this election? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they are talking about the real basic need of the people.
जैसे कि अगर आप बेसिक नीड बोलते हो तो बेसिक नीड क्या है? जब आप इंटीरियर्स में जाइए, गाँव में घूमिए, तो पता चलेगा कि जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक ज़रूरत के मुद्दे की चीज़ें हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है, उन सब मुद्दों पे आज तक इस पर्टिकुलर इस इलेक्शन में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जेडीयू के जो लीडर है नीतीश कुमार, उन्होंने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट निकाला था उसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए औरतों के लिए। आपको लग रहा है कि ये एक ज़रूरत है यहाँ बिहार की? अगर औरतों को आरक्षण मिले तो सभी जातियों को मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर आरक्षण हटा देनी चाहिए। हाँ। आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे टैलेंट को बिल्कुल क्रश किया जाता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। There are some more youths who are at this लिट्टी चोखा स्टॉल। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों के कॉलेज कैंपस पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में नेता बात कर रहे हैं? बस बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग के पास ना लाइटिंग मिलता है, ना बाथरूम है, ना टॉयलेट करने के लिए बहुत सब चीज़ साधन नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है। और हम लोग छोटा ऐसी टॉयलेट करते हैं, हमारे कॉलेज में कुछ भी साधन नहीं है, फिर भी हमारे प्रिंसिपल फॉर्म चार्ज और क्या बोलता है बढ़ाते ही जाते हैं हर साल। शिक्षा का जो स्तर है बिहार में वो कैसा है? आप लोग तो स्टूडेंट्स हो। हाँ, शिक्षा तो चल रहा है ठीक बिहार में, लेकिन थोड़ा सा नीतीश कुमार इस पर और ध्यान देंगे छात्र पे। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स भराए जाते हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं कंडक्ट होता। क्या ये सही बात है? आज भी सही बात है, आज भी। हाँ, एकदम फॉर्म भराता है, एग्जाम नहीं होता है। क्या बीएससी इंटर लेवल का एग्जाम हो गया, ग्रेजुएशन का इंटर का भी एग्जाम नहीं हुआ है, फॉर्म भरा गया कब का भी एग्जाम नहीं हो चुका है। As you can see, the students basically are demanding an improvement in the level of education and also rehabilitation of the basic amenities in Bihar schools. While the political parties are busy strategizing in their war rooms, the real politics is being played out on the street. For example, at this particular Sattu stall, which is many years old, it's supposed to be one of the most celebrated Sattu stalls. It's called the Bhola Sattu stall at this street. Bhola ji, ये बताइए कि आपका ये जो सत्तू है, ये आपने कब से इसको बेचने की शुरुआत की थी? ये सर तो करीब 22 साल से बेच रहे हैं। 22 साल से आप बेच रहे हो जी। और कितने रुपए में बेचना स्टार्ट किया था और आज इसका क्या दाम है? शुरू में स्टार्ट हुआ था सर 3 रुपया से। 3 रुपए से। आज कितने में बेच रहे हैं आप? आज 10 रुपये गिलास बेच रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि सत्तू बेचते बेचते आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है सर। जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, कमाई कम गया, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गया और आपका कमाई कम हो गया। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी बातें कर रही हैं, आपका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं? हम लोग के क्या फ़ायदा होगा? हम लोग तो डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, हम लोग के तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े जो इकोनॉमिक पैकेज की बात की है नरेंद्र मोदी जी ने, आपको नहीं लग रहा है कि इससे आपका कोई फ़ायदा होगा? आप तो किसी गाँव से फ़ायदा नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जी हम लोग क्या थी भी बांटिल कौन कार्ड तो बोलता है कि बोल 10,000 15,000 लेकर के कोई कारोबार कीजिए, बैंक में आते जाते रहे, अभी तक नहीं हम लोग के। लेकिन आपने इसके पहले भी बहुत सारा राज्य देखा है, लालू जी का, नीतीश जी का, फिर बीजेपी अब बात कर रही है बहुत बड़ी। क्या लग रहा है हवा किधर बह रही है? अभी तो बोलबाल है बीजेपी के। हाँ, बोलबाला बीजेपी का है। Okay, there are many other people who've come here to enjoy Bhola ji's sattu. Let me ask a few more people here what they feel about this entire political wave in Bihar. मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी बातें जो इस समय सरकार कह रही है, जैसे नीतीश जी बोल रहे हैं कि 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, रिजर्वेशन की बात आ रही है, कास्ट की बात आ रही है, विकास की भी बात आ रही है। मुद्दा क्या है असली? अभी तक तो कोई विकास हुआ नहीं। अच्छा, इतना दिनों से हम यहाँ पर हैं और आज मेरा 60-65 साल उम्र हो रहा है, हमने कोई विकास नहीं देखा। लालू के जंगल राज देखा। रात में लोग निकलते थे तो डर के जाते थे कि पता नहीं हम घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। उसके बाद नीतीश जी को हम लोग इसलिए दिए कि वो जंगल राज खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने जंगल राज खत्म कर पाए? वो दोनों माने खत्म किए थे। हमारे परिवार के लोग बाजार में आने जाने लगे, लेकिन फिर दोनों मिल गए तो हम लोग को लगा कि अब जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि अब दोनों फिर से मिल गए हैं, तो क्या ये सबसे बड़ा डर है चुनाव का? यस, सबसे बड़ा डर है। और इसी कारण से जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी यहाँ विकास पुरुष के नाम से फेमस हुए थे, आज सुशासन बाबू बोला जाता है उनको। सुशासन बाबू, विकास पुरुष दोनों बोला जाता है।
बट अब जब लालू जी से मिलने के कारण से उनका वो फिर से सुशासन खत्म हो गया और वो विकास का जो उनका लक्ष्य था, वो एजेंडा था, वो खत्म हो गया। आप क्या कह रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए अभी विकास का नाम लेते हैं, एक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि हर घर को कनेक्शन और हर 24 घंटे बिजली। तो ये काम पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुआ? जो काम अभी आप अनाउंस कर रहे हैं वही काम 10 साल में क्यों नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विकास का आप अगेंस्ट में जो आप मुद्दा बना रहे हैं वो जातिवाद बना रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप चले आइए तो 10 इंडस्ट्री का नाम बताइए जो पिछले 10 साल में यहाँ लगा हो, जिसने कि यहाँ कोई 50,000 10,000 आदमी का कोई रोजगार बनाया हो, या कहीं एक टाउनशिप डेवलप हुआ हो जो कि सपोर्ट करता हो किसी सब। कारण क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जो बातें हुई हैं, इंडस्ट्रीज नहीं बनी, लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसका आपको मेन कारण क्या लग रहा है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, दैट्स व्हाट यू ऑल आर सेइंग। ओके, आई विल कम टू यू, लेट हिम स्पीक। जो सिर्फ एक दो काम इन्होंने किया है वो रियली मतलब अप्रिशिएबल है। वो था कि आए तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टाइट हुआ, बड़े छोटे सारे लोग अंदर गए, वो बहुत अच्छा हुआ। रोड कुछ बनी, मेन रोड्स बनी, सब रोड्स तो फिर भी नहीं बने, लेकिन उससे तो काम नहीं ना चलेगा। लेकिन गांव आज भी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था गांव, लेकिन गांव जो है वो आज भी बहुत बदहाल स्थिति में है। गांव के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? गांव के बारे में एक्सपीरियंस यही है कि डेवलपमेंट अगर वो सोचेंगे, बिहार में सबसे बड़ी चीज जो है जातिवाद, और आज लालू जी भी फिर से उस मुद्दे को उठा रहे हैं और गर्म कर रहे हैं। बिहार में जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो जाएगी, बिहार ऐसा डेवलप होगा कि उसके सामने गुजरात भी नहीं टिकेगा, यही तो सबसे बड़ा नहीं टिकेगा। यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बिहार से जातिवाद जाएगा या नहीं। अब एक लास्ट में भोला जी से पूछ लेते हैं। भोला जी, सत्तू बनाते बनाते ये बताइए कि बिहार से जातिवाद जा सकता है कि नहीं? जातिवाद नहीं जाएगा सर। जातिवाद नहीं जाएगा, तो ये अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है, ये बताइए। ये तो बुरा संकेत है। चलिए, उम्मीद है आपका ये जो छोटा सा खुमचा है एक दिन बड़ी दुकान बनेगा, आप सही अगर सरकार लेके आओगे तो। ठीक है सर। It's a neck-and-neck battle between Grand Alliance and BJP-led NDA. Political parties are leaving no stone unturned to lure the voters. The larger theme, of course, is development, but the underlying reality is caste, and that is why the pollsters say this election is complex but interesting. But let me tell you, it's no one's game at the moment. That's all we could pack up in this half hour from our entire team. Goodbye and thanks for watching.